Hello friends, today we are going to see a second lesson of 12th standard chemistry, that is solutions and colligative properties. Students, this is very simple and amazing lesson. This is one of my favorite topic. Theoretical portion is present in this lesson as well as very simple numericals are also present. अगर आप पहले वाला और अभी का सिलेबस कंपेयर करते हो तो यू कैन सी दैट इन टेक्स्ट क्वेश्चन में भी न्यूमेरिकल्स डाले एंड दैट न्यूमेरिकल्स आर वेरी सिंपल. पीडीएफ अवेलेबल है, यू कैन गो थ्रू इट एंड सी what changes are there in the previous and this year syllabus. So this syllabus is also very simple. As I told you, this lesson is very much important CET, JEE and NEET point of view. Generally 2 to 3 questions are asked on the basis of this syllabus. So in this syllabus we will see some points. First of all, we will see what is matter. So matter means anything around us which has mass and which occupies space. कोई भी चीज जिससे मास होता है और जो जगह ऑक्युपाई कर लेती है, that is called as matter. And we know the states of matter. There are 5 states of matter: solid, liquid, gaseous, 4th one is plasma, and 5th one is Bose-Einstein condensate. But generally we have to see these 3 states of matter: solid, liquid and gaseous states of matter. We know that these 3 states of matters are interconvertible to each other. Okay? States of matter can be interconvertible to each other by the change in temperature. मतलब कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो स्टेट्स ऑफ मैटर कैन ऑल्सो बी चेंज. जस्ट लाइक वी नो ice can be converted into water and water can be converted into gaseous phase by change in temperature. Okay, so solid can be converted into liquids. Solid liquid में convert हो सकता है, but उसके लिए हमें क्या करना है? Heat add करनी है plus heat. मतलब solids in order to convert into liquid absorb heat from the surrounding. Liquid can be converted into gaseous phase. लिक्विड गैसियस फेज में चला जाता है, बट अगेन इट हैज टू एब्जॉर्ब सम हीट. उसे हीट एब्जॉर्ब करनी है. इन ऑर्डर टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड इट हैज टू कूल डाउन. ओके, कूलिंग प्रोसेस होती है जब गैसियस सब्सटेंसेस कूल होते हैं, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट. एंड लिक्विड ऑन कूलिंग, लिक्विड भी कूलिंग के बाद में सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं. बट इट हैज स्पेसिफिक नेम. इसे एक नाम होता है, जैसे कि व्हेन सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड द फिनोमेनन इज नोन एज फ्यूजन, मींस मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड. जब सॉलिड लिक्विड में चला जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्यूजन. उसे हम कहते हैं फ्यूजन. व्हेन सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, जब सॉलिड लिक्विड में चला गया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्यूजन. इसे हम कहते हैं फ्यूजन. But when liquid is converted into solid, जब liquid solid में आता है, that process is called as freezing. उसे हम कहते हैं freezing. Okay. The second phenomenon is when liquid is converted into gaseous state. जब liquid gas में चला जाता है, when liquid is converted into gaseous phase, जब ये gaseous phase में चला जाएगा, that process is called as vaporization. इसे हम vaporization कहेंगे. And when gases is converted into liquid state, जब गैस लिक्विड में चला आता है, then this is known as condensation. इसे हम कहते हैं condensation. See, there is a difference in between vaporization and evaporation. Evaporation क्या है? हालांकि दोनों प्रोसेस में क्या होता है, लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस फेज, दोनों इसमें सेम हो रहा है. बट एवापोरेशन में क्या होगा? बिलो बॉइलिंग पॉइंट, नेचुरली जब वाटर गैसियस फेज में चला जाता है, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज एवापोरेशन. वेपराइजेशन के लिए हमने क्या किया, हम हीट कर रहे हैं उसे. हीटिंग करने के बाद में वाटर गैसियस फेज में चला जाता है, बट एवापोरेशन कैन टेक्स प्लेस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट के नीचे एवापोरेशन होता है. नेचुरली
conversion of liquid into gaseous phase takes place, that process is called as evaporation. So students, try to understand the difference between evaporation and vaporization. evaporation में भी liquid gaseous phase में जा रहा है और वेपराइजेशन में भी लिक्विड गैसियस फेज में ही जा रहा है, लेकिन वेपराइजेशन के लिए हम हीट कर रहे हैं और एवापोरेशन ये नेचुरल फिनोमिनन है जिसमें बिलो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड गैसियस फेज में चला जाता है. ओके, सो दिस आर द स्टेट्स ऑफ मैटर विच आर इंटर कन्वर्टिबल टू ईच अदर. जैसे हमने देखा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर चेंज करते हैं या तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रहा है या इवोल्यूशन ऑफ हीट हो रहा है, हीट निकाली जा रही है या तो हीट ऐड हो रही है. ओके, जैसे कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो बाय चेंज इन टेम्परेचर देयर इज अ चेंज इन द स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट भी चेंज हो. बट वन मोर टर्म इज देयर, एक और टर्म वहाँ पे ऐड होती है विच इज नोन एज सब्लिमेशन. जैसे कि हम सब्लिमेशन एक और एक नई टर्म यहाँ पे इंक्लूड करते हैं. तो सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन मीन्स कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू गैसियस फेज और गैस इनटू सॉलिड फेज. जब सॉलिड गैस में चला जाता है और गैस इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन. वो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन. मीन्स इट इज द डायरेक्ट कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू गैसियस फेज और गैसियस फेज इनटू सॉलिड फेज विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड. लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, that process is called as sublimation. उसे हमने कहा है sublimation. So these are the basic terms which are included in this lesson. ये introduction में ही आता है actually. As we know that all the three states of matters are very much important. बहुत ज़्यादा important है. We know that कि जैसे liquid state है तो liquid means if we consider water, so water is our life. Without water we cannot survive. Without water हम जी नहीं सकते. सो जैसे लिक्विड स्टेट इम्पोर्टेंट है, इन द सेम वे गैसियस स्टेट भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है. लाइक गैसियस स्टेट में हम ऑक्सीजन कंसिडर करते हैं सपोज, तो ऑक्सीजन इज ऑल्सो आवर लाइफ. विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव. ऑक्सीजन के बिना भी हम जी नहीं सकते. इन द सेम वे सॉलिड स्टेट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सॉलिड स्टेट भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज सॉलिड के अंदर फूड, शेल्टर, क्लोथ सब चीज़ें आ रही है, ड्रग्स आ रहे, मेडिसिन आ रहे, all the things are involved in the solid state. सारे solid state के अंदर आते हैं. Therefore, as gaseous states, liquid states are important. In the same way, solid states are also important. Solid state भी उतनी ही important है. So, in this lesson we are going to see properties of liquids, properties of solids, and some properties based on liquids and solids. Okay. The another point which we are going to discuss here is solution and mixtures. Okay. Then the next point is solution. What do you mean by solution? अभी ये solution क्या होता है, mixture क्या होता है, that we will see in this video today. What is solution? Solution is a mixture of two or more components. दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का जो मिक्सचर है, that we will call that as a solution. उसे हम कहते हैं solution. Means mixture of two or more component. Mixture, यहाँ पे मैं mixture को underline कर रही हूँ, मतलब ये बहुत ज़्यादा important है. Mixture of two or more components. Two or more components. दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का जो मिक्सचर है दैट इज नोन एज सोल्यूशन. उसे हमने कहा है सोल्यूशन. तो यहाँ पे मिक्सचर आ रहा है, मिक्सचर्स. तो ये मिक्सचर है क्या? तो मिक्सचर क्या है? इट इज अ फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का फिजिकल कॉम्बिनेशन मतलब रहेगा मिक्सचर. ओके, सो सेकेंड टर्म इज मिक्सचर. सेकेंड टर्म होती है यहाँ पे मिक्सचर. तो मिक्सचर जैसे मैंने बताया कि क्या है, फिजिकल कॉम्बिनेशन है. फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का फिजिकल कॉम्बिनेशन मतलब मिक्सचर है. On the basis of size of particles, component particles present in the solution. मतलब जो हम अब हम जो solutions बनाने जा रहे हैं
उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे और वो पार्टिकल को एक पर्टिकुलर साइज होती है. ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ दैट कंपोनेंट पार्टिकल्स, वो पार्टिकल के साइज के ऊपर से हम सॉल्यूशंस के या मिक्सचर्स के टाइप डिसाइड करते हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी टाइप्स ऑफ मिक्सचर. मिक्सचर के क्या टाइप्स हैं? तो मिक्सचर्स आर ऑफ 3 टाइप्स. मिक्सचर 3 टाइप के रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स, कंपोनेंट पार्टिकल्स. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ size of component particles. There are 3 types of mixture. Mixture के रहेंगे 3 types. The first type is called as coarse mixture. पहला जो टाइप है that is called as coarse mixture. In this coarse mixture, the size of component particle is larger than 10⁻⁻6 मीटर. मतलब यहाँ पे पार्टिकल की साइज, सॉल्यूशन के पार्टिकल की साइज जो है वो कितनी रहेगी? सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट है वो कंपोनेंट के पार्टिकल की साइज कितनी है? तो that is larger than 10⁻⁻6 meter. Okay, here size of component particles of solution, component particles of the solution is larger than 10⁻⁻6 meter. पार्टिकल की साइज कितनी है? larger than 10⁻⁻6 meter. means this particles are quite larger in size. ये particles थोड़े बड़े होते हैं. मतलब you can see it by naked eyes also. ऐसे भी हम देख सकते हैं, जैसे कि crushed sand particles है और जिसके अंदर पानी हमने डाल दिया. मतलब you can say that example of coarse mixture is sand plus water. sand plus water. तो sand के particles को हम अगर crush करते और उसके अंदर पानी डाल देते तो भी हम ये sand के particles को देख सकते हैं. So that is the example of coarse mixture. तो समझ में आया होगा आपको कि ऐसा सॉल्यूशन है जो सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट पार्टिकल्स है वो कंपोनेंट पार्टिकल की साइज कितनी है? तो इट इज लार्जर देन 10⁻⁻6 मीटर. ओके, सो स्टूडेंट्स ये साइज जो है, ये साइज आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ साइज ओनली वी आर क्लासिफाइंग द मिक्सचर इनटू 3 टाइप्स. ये साइज बहुत मैटर करता है यहाँ पे, क्योंकि साइज के ऊपर से इसके टाइप्स बनाए गए हैं. ओके, सेकेंड टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड एज कोलाइड्स और इट इज ऑल्सो नोन एज कोलाइडल डिस्पर्शन. दूसरे टाइप जो है मिक्सचर के उसे हम कहेंगे कोलाइडल डिस्पर्शन. कोलाइडल डिस्पर्शन. इन कोलाइडल डिस्पर्शन साइज ऑफ कंपोनेंट पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन हमने बनाया है वो सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स है, कंपोनेंट पार्टिकल्स है, वो कंपोनेंट पार्टिकल की साइज कितनी है? तो इट इज लार्जर देन 10⁻⁻6. 10⁻⁻6 से ज्यादा है एंड लेस देन 10⁻�9 मीटर. मीन्स यू कैन से दैट द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज इन द रेंज ऑफ, एक रेंज आप डिसाइड कर सकते हो, एक रेंज बता सकते हो कि ये रेंज में वो पार्टिकल की साइज होगी, दैट इज in between 10⁻⁻6 meter to 10⁻�9 meter. Okay, so size of colloidal component particle is, component particle की size है 10⁻⁻6 meter to 10⁻⁻9 meter के बीच में, in between 10⁻⁻6 meter to 10⁻⁻9 meter. Okay, and see colloidal particles are also bigger in size. ये भी थोड़े बड़े होते हैं. Therefore it is having either colloidal particles को या तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा या तो नेगेटिव चार्ज होता है. मतलब these are the charged particles. ये क्या है? charged particles है ये. These are charged particles. मतलब it carries either, इसके अंदर या तो ये पार्टिकल्स को पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या तो ये पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो सकता है. और इसका बेस्ट एग्जांपल है फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. ओके,
फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है, फेरिक हाइड्रोक्साइड. Okay, that is the example of colloidal dispersion. Students, the third type of mixture is called as true solution. तीसरा जो टाइप है उसे हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन. तो ये ट्रू सॉल्यूशन क्या है? ट्रू सॉल्यूशन मीन्स होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स. यहाँ पे मैंने और एक टर्म ऐड की है, दैट इज होमोजेनियस. मैंने बोला है थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन. तो ट्रू सॉल्यूशन के लिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, दैट इज होमोजीनियस. होमोजीनियस. होमोजीनियस मैंने ऐड किया है. होमोजीनियस मिक्सचर फिर भी और एक बार ऐड किया है. होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स. टू और मोर कंपोनेंट्स. और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि whose composition can be vary within certain limits. Whose composition can be vary within certain limits. See, ट्रू सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के अंदर क्या डिफरेंस है? तो सॉल्यूशन के अंदर हमने यहाँ पे होमोजेनियस ऐड नहीं किया था. ट्रू सॉल्यूशन के लिए मैंने यहाँ पे होमोजेनियस कहा है. देखो, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स. ट्रू सॉल्यूशन क्या है? तो इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट. दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का होमोजेनियस मिक्सचर है. whose composition can be vary within a certain limits. मतलब जिसका कंपोजिशन वैरी हो सकता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसका ट्रू सॉल्यूशन का एग्जाम्पल मैं लेती हूँ. सॉल्ट प्लस वाटर और शुगर प्लस वाटर. ये सॉल्यूशन हमने वाटर के अंदर बनाया है. तो एज टेम्परेचर चेंजेस वाटर कैन एवेपोरेट. वाटर एवेपोरेट हो सकता है, राइट ना? Suppose 1 gram of salt is added into 1 liter of water. 1 लीटर वाटर के अंदर हमने डाल दिया. और अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वाटर का क्या होगा? एवापोरेशन होगा. मतलब पहले जो 1000 ml वाटर था वो कुछ डिक्रीज हो जाएगा. सपोज 900 ml वाटर है. सॉल्ट तो डिक्रीज नहीं होगा ना, सॉल्ट 1 ग्राम ही रहेगा. मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ है. सो बाय चेंज इन टेम्परेचर, जब चेंज किया हमने, टेम्परेचर को चेंज किया, तब कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हुआ? चेंज हुआ. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड हियर कि whose concentration or composition, you can say concentration also, whose concentration, जिसका concentration क्या हो सकता है? वैरी हो सकता है. So homogeneous mixture of two or more component whose composition or concentration can be changed within the certain limits. कुछ हद तक उसका concentration change हो सकता है. That's why here also you can see that salt और water को जब हमने ऐड किया तो as water can be easily evaporate होता है, तो यहाँ पे concentration उसका change हो जाता है. In the same way sugar plus water भी वैसे ही होता है. So solution consists of two components. Solution के अंदर दो component आ गए. एक solvent है and second one is solute. तो what do you mean by solute and what do you mean by solvent? अब ये solute क्या होता है और दूसरा जो टर्म है यहाँ पे सॉल्वेंट, वो क्या है? तो सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, जिसके अंदर दो कंपोनेंट आ गए. एक सोल्यूट है और दूसरा क्या है? सॉल्वेंट है. तो व्हाट डू मीन बाय सोल्यूट? सोल्यूट क्या है? यहाँ पे सोल्यूट क्या है? सॉल्वेंट क्या है? सोल्यूट मीन्स द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट टू अ स्मॉलर एक्सटेंट, जो कम होता है. Smaller extent. The component which is present to a smaller extent is known as solute, and the component which is present to a larger extent is called as solvent. So in the above examples, ये जो हमने examples लिए, यहाँ पे water ज़्यादा present है, that's why water is a solvent, and sugar और salt कम present होता है. यहाँ पे ये एग्जाम्पल में कम प्रेजेंट है, 1 ग्राम है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सोल्यूट. सो सोल्यूट इज द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट टू अ स्मॉलर एक्सटेंट एंड सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट टू अ लार्जर एक्सटेंट. The next portion we will see in the next video. Thank you.